when you talk about marketing, so what is marketing? MBA is all about marketing. But I feel marketing is what people talk about your brand. सांगली में एक गार्डन है बापट माल, आपको पता है, वहाँ पे इडली बेचते हैं हम। रोज सुबह 5 बजे पहुंच जाते थे एंड इडली बेचते थे। इनकार्टो काफी अर्ली स्टेज में प्रॉफिटेबल हो गया, जो होना नहीं चाहिए था। जितना जल्दी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा, कहीं ना कहीं आपका एक कंफर्ट जोन ग्रो होने वाला। इनोवेशन इज नॉट द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिजनेस, द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिजनेस। Hello everyone, welcome to Charcha Junction. We are on our way to start our first podcast channel, and for the first podcast we have our guest Mr. Harsh Shah. He set up his business when he was just 23. He started exploring the business right from his college days in CIMDR Sangli. He also mentors small businesses to grow. So enjoy Harsh on Charcha Junction. So we will like to know about what is your education and how did you complete it after CIMDR or during CIMDR? So I did my BBA in this college, and उसके बाद I did MBA. Okay. So after MBA, it was directly a jump into my startup journey. So that's how the startup started. Being in college as well, I used to do a lot of startups, which were Okay. not that successful, but yeah, that's how it used So to be. then what was that idea like to start Incarto? Like did you see that any gaps in the market that you thought that in this stationery field so you can fill it? So yes, there is a gap. So the gap in stationery business is what I'll tell you, कि लोगों को जो स्टेशनरी चाहिए वर्सेस ऑफलाइन मार्केट में जो स्टेशनरी मिल रही है, उसके बीच में गैप है. Okay. So people were not getting what they wanted exactly. So that's where the online thing comes in place. And we started this business in the time of COVID. Oh. So COVID में again, you know, the constraint was we couldn't go out and buy. So तब लोग online डालते थे कि I want to buy stationery. And there's a concept called SEO. Probably will come in the later part of the podcast on that part. So it hit us. So when the SEO hits us, so Google starts ranking your page. Okay. So that's how we got the traction. So then how did you decide like यही आइटम मुझे रखनी है और क्योंकि ऑनलाइन स्टोर है तो ये फिजिकल में मिल रहा है ऑनलाइन में मिल रहा है तो व्हाट मेड यू कि हाँ कि मेरा ऑनलाइन चलेगा ही चलेगा. ऐसा नहीं है कि देयर वाज समथिंग दैट मेड मी फील कि चलेगा, ऐसा नहीं है. आई जस्ट ट्राइड इट. Okay. So when I tried, sorry to cut you off. So when I tried selling stationery online, a lot of factors came in the place. जैसे कि content is one thing, marketing is one thing. So I never knew कि चलेगा. वो चल गया, that is separate. Okay. So I would like to know more about your schooling and this college life. ठीक है. So when we talk about schooling and how do I relate it with my startup journey, I'll tell you the thing in that. स्कूल में ना मेरा एक फंडा था कि जब तक कोई चीज मुझे समझती नहीं है तब तक मैं मुझे उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, नो मैटर व्हाट. The same was in the college. If you could go and ask the teachers, they would be very frank about it. In college as well, I used to spend most of my time in library because I never got to understand the 7 P's of marketing. तो मुझे वो फंडा क्लियर था, but I did not know the implementation. So I spent most of my time in library, and that's where I grew. So that's how it began in the start. So after that तो आपने जो बोला 7 P's वाला तो वो 7 P's कहीं ना कहीं आपने बिजनेस में भी यूज किया ही होगा. 100%. ऐसा नहीं है कि 7 P's एग्जिस्ट नहीं करता है, बट एट द टाइम व्हेन आई वाज डूइंग MBA, इट वाज नॉट समथिंग आई कुड रिलेट. I had no product, I had no business of my own. So that's how it is. Okay. So you thought of मतलब ये टोटली इट इज योर स्टार्टअप या पहले से बिजनेस था? बिजनेस तो था, आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, तो स्टेशनरी का बिजनेस था. बट सो स्टार्टअप इज अ वर्ड दैट इज हाइप टू मच. इंडिया में आप कुछ भी कर लो, आप ये बॉटल बेचो, यू आर डूइंग अ स्टार्टअप. So it was something my father did, and I just modified it in a way it turned out to be a startup. So during that corona phase as you said तो मार्केटिंग चैनल्स भी थोड़े यूज हुए हैं. 100%. Google, Facebook. So कैसे इफेक्टिव हुआ मतलब how did the marketing channels made it effective that in business use? Mhm. So when you talk about marketing, MBA is all about marketing, right? Right. So marketing channels, so I would say कि doesn't make a lot of difference in the business, but way of marketing. So what is marketing? As per MBA, it is something where you advertise your business to the world. But I feel marketing is what people talk about your brand. What you talk with your friend about my brand Incarto. That is what marketing is. And that's how branding is done. So we had advantage of a lot of things like COVID was one of them.
कि कोविड में there were not a lot of brand who were doing the marketing part, so we got advantage. मतलब प्रोडक्ट की हाँ पहले से स्टोर तो था उसको हम्म। ऑनलाइन में करना है तो फिर उसको आइटम्स भी एडवांस हुए रहेंगे ना कि नहीं मुझे अब इसमें भी थोड़ा कुछ एडवांस Of चाहिए course. So इसमें I would say कि innovation is not the first step of business. ये मेरा thought process है, could be wrong. The first step of business is profitability. So once you see the journey where you become profitable, तो वहां से things start. अब क्या product रखना, क्या product नहीं रखना, it turns out with time. So initially it was plain sight. कि let's try and keep a lot of products. फिर जो नहीं चलते, we'll keep on removing them and all of it. कोई सक्सेसफुल कैंपेन किया ड्यूरिंग योर कॉलेज के बाद जो स्टार्टअप किया तो अभी तो कैंपेन किया आपने सो सी मैं कैंपेन तो नहीं बोलूंगा बट आई हैड दिस वेरी लर्निंग एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द स्टार्टअप सो आई यूज्ड टू सेल टी मुंबई में ओके there's this area called Juhu Chowpatty. So I used to sell tea over there. After my MBA, I went down to Mumbai and I realized when you talked about the gap on the start of the podcast, at the start of the podcast, कि क्या गैप आपने देखा तो पहले मैं चाय लेके बेचता था मैं मेरा बरमूडा डाल लेता था कंप्लीट एक लुक मैंने रिवैम्प कर दिया एंड मैं चाय बेचता था बट पीपल डिड नॉट बाय द चाय बिकॉज देयर वाज नथिंग दैट वाज डिफरेंशिएटेड बहुत सारे लोग चाय बेच रहे थे सो व्हाट आई फिगर्ड आउट कि लेट्स डू वन थिंग हम डायबिटिक लोगों के लिए चाय बेचेंगे डायबिटिक लोगों की चाय में शुगर नहीं होता है तो दैट वाज द गैप आई फिगर्ड आउट कि बहुत सारे लोग नहीं कर रहे थे सो व्हेन आई टुक द डायबिटिक चाय लोगों की चाय आई कुड सेल दैट चाय एट प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज सो 10 में मैं जो रेगुलर चाय बेचता था अब मैं 15 में डायबिटिक लोगों की चाय बेच रहा था एंड इट वाज अ हिट अ लॉट ऑफ पीपल बॉट इट सो वो फंडामेंटल मैंने यहाँ पे लिया व्हेन यू टॉक अबाउट द कैंपेन मतलब बेसिकली अंडरस्टैंडिंग दैट गैप टू फुलफिल एंड Yes. वर्किंग ऑन दैट एंड प्रॉफिटेबिलिटी यस मतलब कोई की फैक्टर है जो आपको हेल्प किया इनकार्टो को ग्रो करने में की फैक्टर लाइक वो जो स्टार्टअप है तो लार्ज स्केल पे अभी चल रहा है तो कोई हम्म। ऐसा की फैक्टर रहा होगा कि इम्प्लीमेंट हुआ है key factor could be the situations. So how was the Engato started? So मेरा thought process है every business or every startup starts out of disparity या फिर recession और when things are not good. अगर आपके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है तो आप बिजनेस नहीं करोगे. You will probably go for a pretty much settled life and take lesser rest. So मेरे लाइफ में वो फेज नहीं आया. As soon as I was done with my MBA, I had no such big background that could help me support my further life. And मैं थोड़ा जुगाड़ू पहले से था right from college. मैं बहुत जुगाड़ू लड़का हूँ. Even my group, entire group हम लोग जुगाड़ी करते थे. पास भी जुगाड़ से ही हो गए. So अब जुगाड़ू की तो स्किल है अपने पास. एंड सिचुएशंस भी ऐसे नहीं है कि कुछ किए बिना लाइफ चल जाएगी सो दैट्स हाउ Encarto was formed. Basically, I know what is Encarto. It's a online biggest मतलब online store है तो I like audience also to know कि Encarto में ऐसा मतलब फैमिली तो थी आपके साथ पहले से सपोर्टेड तो फ्रेंड्स एंड फैमिली का सपोर्ट मिलके लाइक हाउ वाज योर बिजनेस ग्रोइंग मतलब ओके इसका थोड़ा सा ट्रिकी आंसर मैं आपको दूंगा ओके इन योर टफ टाइम नोबडी इज योर्स नॉट योर फ्रेंड्स नॉट योर फैमिली बिकॉज दोनों का एक पर्सपेक्टिव है फैमिली आपके टफ टाइम में आपके साथ इसलिए नहीं रुकती बिकॉज दे सी द रिस्क इफ यू फेल दे विल बी द मोस्ट सैड पर्सन आप बोल सकते हैं डेफिनेटली एंड फ्रेंड्स का तो एक सिंपल फंडा है यू शुड हैव फ्रेंड्स हु यू कैन काउंट ऑन द फिंगर्स ऑफ योर वन हैंड तो मेरा ऐसा नहीं था माय ग्रुप वाज टू बिग सो देयर वर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल हु वर हैप्पी टू सी मी वर्क and the people who were happy to see me work I couldn't see them as real friends ओके so वो judgment बहुत important है who is real and who is not हाँ मतलब कर रहे तो पीछे अपने को चाहिए कि कभी भी जरूरत पड़ेगी तो वो लोग रहेंगे बट Yes. वो टाइम्स पे अपने को लगता नहीं है कि वो रहेगा या नहीं रहेगा बिल्कुल तो मेरा एक फ्रेंड था महेश करके he was in the same college and वो कॉलेज में आता नहीं था so he used to have this cafe and everything so I never saw him as a real friend just hi bye आज जैसे हम लोग मिले हाँ तो हुआ यूं कि in my tough times he was there with me suggestion salah what you call and the people who I thought were real friends of mine in my tough time I couldn't see them so as you asked the question friends and family का क्या रोल है रोल सबका इक्वल होता है you should be smart enough to figure that out बेसिकली सिचुएशन आल्सो मैटर्स अ Yeah, a लॉट lot. सो एज अ बिजनेस है तो कंपटीशन तो रहने ही वाले है कोई भी बिजनेस का कंपटीशन है तो हाउ डू डिफरेंशिएट योर ऑफरिंग्स एंड योर कॉम्पिटिटर्स
So see, competition is something you cannot avoid. That is one single rule of the business. Competition तो आएगा. Differentiating yourself with your competitor starts from how you think. How you think. Like हमारे case में, when I started the business, service was not a priority. Because right that time availability was an issue. Right now the market has bought all the businesses to give the best service, including ours. So that's how it is. Why bigger companies and giants are doing good. It is because of service. And मुझे honestly speaking, I got to know that थोड़ा सा late in my startup journey. So last few years se we are completely focused on service. So service differentiates your product. Your product is never a differentiating factor in business. Okay. Like running an Encarto is not a easy task. It's always a difficult task in running any business. So what are the difficulties? Like ऐसे कोई task भी आए रहेंगे कि जहाँ पे you thought of कि like यार बहुत काम हो रहा है, stressful हो रहा है, तो खुद की personal life और professional life manage नहीं हो रही है. तो what did you do for that? So I have this very fun thing to talk about. अपने Indian mythology में it is said Maya. The world is Maya. अगर if world was not Maya, Krishna बोलो या महावीर बोले या बुद्धा, they would never have thought to leave this world and be towards the journey of enlightenment. So stress is part of life. We have to admit that. Talking about work-life balance, startup में it's all pretty messed up in the starts. But as you grow, it is very essential that you get the financial freedom and literacy. When I talk about financial literacy is where you understand time is money or time is more than what money offers. So that is the time when you figure out okay, work-life balance is important. Time is important. Let's start giving time to your family. Let's start giving time to your friends, yourself, your skills. So yeah, work-life balance is important, but not in the early stage of startup. So how do you manage being a leader? I still don't know how to manage. Okay. Honestly, as a leader, I'm trying to figure out how to manage that out. But stress वाले situations होते हैं. अभी I'll tell you कल का दिन. It was all stress because I have to look after content, advertisement, finance, team building, a lot of factors. I would see business as a combination of 7 factors. We can talk about that later. So I was pretty much confused. I went to my wife. I told her, "Hey, see, things are messed up. I am not able to manage my life. Give you time, give my family time." So she gave me this one idea that really helped me. He segregate your day and your skills. So today it's supposed to be a content day. So I'll just think about content. Tomorrow it's about marketing. I'll just think about marketing. On Sundays it's family. So I'll just think about family. So we'll have to do that because initial stage of startups are very difficult. क्योंकि आपके पास उतना बड़ा टीम नहीं होता है. You are your team, you are your leader, and you are everything. So yeah, that's how it is. Even after having so many people also it feels like मैं मेरा धंधा है यार मुझे देखना पड़ेगा भले ही वो लोग उनका काम करेंगे but it will be like वो मेरे पे responsibility तो है ही है. बिल्कुल बिल्कुल वो तो है because कैसा है कि this is your baby that you've grown and हम ऐसा देख ही नहीं सकते कि कोई इसको हैंडल कर रहा है बट ऐसा नहीं होना चाहिए बिजनेस या स्टार्टअप में यू शुड डेलीगेट एंड इट इज वेरी टफ फॉर बिजनेस ओनर्स टू डेलीगेट कि फॉर एग्जांपल आपको मैं काम दे दूं आई हैव टू ट्रस्ट कि आप कर रहे हो सो वो इवेंचुअली बिल्ड हो जाता है 1-2 साल में यू स्टार्ट बिकॉज आप सब तो नहीं कर सब सकते तो नहीं कर सकते definitely. तो how does your business like Incart approach to the environmental issues? हमने एनवायरमेंटल इश्यूज में क्या किया कि वी डिवाइडेड द वर्क एज सून एज आई गॉट मैरिड माय वाइफ स्टार्टेड लुकिंग ये जो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है वो सारा मेरी वाइफ देखती है एंड जो बैकएंड जिसको बोलते हैं लाइक सपोर्ट हो गया स्ट्रेटेजी मेकिंग डिसीजन मेकिंग वो सब मैं देखता हूँ तो अब वर्क काफी डिवाइडेड है सो यू शुड हैव दैट पर्सन इन योर लाइफ आई वुड नॉट से ऑल द टाइम इट्स वाइफ और फैमिली मेंबर बट समवन who you can trust blind. So basically, what's a habit that you think like that can contribute to the startup success? मतलब एक habit ऐसी होनी चाहिए जो startup में success के लिए useful रहेगी बहुत. So see, मेरे हिसाब से startup success में कोई habit नहीं लगती. वो eventually आ ही जाता है. But to be happy about your life, एक habit आपको लगती है is never to be satisfied by what you're doing. Not in terms of success. नॉट इन टर्म्स कि आप उसको लिमिटेशन डाल दोगे कि अगर मुझे पैसे कमाना वैसा नहीं यू शुड नेवर बी हैप्पी विद योर लाइफ मतलब नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू बी हैप्पी बट ट्राई टू इम्प्रूव अब मेरे लाइफ का एक हैबिट है कि आई रीड
Okay, I read a lot. So अभी क्या हो रहा है in startup, since my startup has grown, I'm not getting time to read. So I'm not happy about it. I'm not happy at all. So now I'm trying to build कि मैं कैसे उसको differentiate कर सकूँ my business life, my personal life and my reading lens. So that's how it is. So habit should be try to be better. मतलब ऐसे नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, मतलब सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, मतलब एवरी टाइम इट शुड समथिंग और समथिंग लाइक मिसिंग कुछ तो रहना ही चाहिए. हाँ मतलब it should not be about earning the money. तो that's a rat race. You will keep on doing it for it. मनी का क्या है कि there's no some upper bracket. आप कितना भी कमा लो आप थोड़ी ना satisfied होने वाले. So satisfaction should come from a lot of factors. जहाँ पे you should be spending time with your friends and family. You should have your personal life and your business. What do you think, मतलब अपने कंट्री में what is that entrepreneurship scenario you think going on? Like क्या चल रहा है अभी on the basis of startup हो या innovation हो या कुछ भी हो. We are having the glorious days of our life. I mean India all together as a nation. काफी अच्छा टाइम. आज अगर आप इट्स लाइक कि ट्री का जो इनिशियल फेज होता है सीड सोइंग वो टाइम चल रहा है. आप अभी कुछ भी करो इंडिया में चलेगा एथिकली फॉर गुड ऑफ द पीपल चलेगा. आई मीन आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट. आज से 5 साल पहले जो सिचुएशंस थी 10 साल पहले थी आज बेस्ट सिचुएशन. And even we don't know कि इसके 5 साल के बाद क्या होने वाली है. Right now it's glory. या नहीं इसके 5 साल अब नेक्स्ट 25 years तो ग्लोरियस पीरियड ही है इंडिया का. तो कुछ इशू नहीं. क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है, दे आर इन अ मेंटालिटी लाइक स्टार्टअप चालू करेंगे, क्या पता सक्सेस जाएगा नहीं जाएगा, पैसे डाल रहा हूँ मैं. सो आई बी लाइक ऐसा क्यों है कि बिजनेस चालू कर रहा था तो पैसे का सोच रहा है, ऐसा सोचना कि मेरा बिजनेस ग्रो भी हो जाएगा. तो मुझे उनके लिए मेन ये क्वेश्चन आता है कि वो बिजनेस चालू करना चाहता है बट ही इज स्कैर्ड ऑफ द लॉसेस. ओके तो आप लॉसेस को मॉनेटरी टर्म्स में देख रहे हो इसलिए आप लॉस समझ रहे हो राइट. अगर इमेजिन करो आपने बिजनेस स्टार्ट किया आपने ना उसमें पैसे डाला ना आपको पैसे मिलने वाला दोनों इक्वल आउट हो गया. तो व्हाट इज दैट यू आर गोइंग टू गेट टेल मी. आप मैं आपको पूछता हूँ पैसे निकाल दो. तो जो जर्नी स्टार्ट हो रही है वो एक रॉन्ग इंटेंट से हो रही है. मैं आपको वही कहना चाहता हूँ कि जब आप पैसों को एक इंटेंट या एंड गोल देखते हो तब वो डेफिनेशन आता है सक्सेस एंड नॉन सक्सेस या फेलियर व्हाटएवर इट इज. अब मैं आपको मेरे लाइफ का एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. हमने सांगली में एक गार्डन है बापट माला आपको पता है वहां पे इडली बेची है. तो मैं और मेरा एक दोस्त हम रोज सुबह 5 बजे पहुंच जाते थे एंड इडली बेचते थे. तो वो इडली बेचने का जो रीजन था वो कभी पैसे कमाना था ही. हम लोग को ये देखना था कि लोग वहां पे आते हैं वो क्या मेंटेलिटी से आते हैं. तो हम वहां पे कम्युनिकेशंस जो होते थे काफी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे हेल्दी इडलीज बनाते थे. तो रागी की इडलीज बनाते थे ऐसा नहीं कि रेगुलर इडलीज बना रहे थे. इवन दैट इज हेल्दी ऐसा नहीं. सो काफी डॉक्टर्स आते थे इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे कंस्ट्रक्शन फील्ड के आते थे. तो हम उनके कॉन्वर्जेशन सुनते थे हाउ डू दे टॉक. सो अब वहां पे पैसे कमाना तो हमारा गोल था ही. तो अब आप इसको सक्सेस बोलोगे या फेल. हमने एक दिन भी प्रॉफिट नहीं किया लेकिन हमारा जो रियल प्रॉफिट था वो लर्निंग्स था. आज इंकार्टो में हम काफी सारे स्ट्रेटेजी उस दिन हमने जो एक्सपीरियंस किया था उस पे बनाता. तो ऐसा नहीं है कि इंटेंट अगर रॉन्ग है तो आप सक्सेस फेलियर के चक्कर में अटक जाओगे. मेरे हिसाब से दिस कुड बी रॉन्ग. मतलब जब आप और आपके फ्रेंड वहां पे रहते थे डॉक्टर्स और जो भी आता था तो बेसिकली वाज उनकी थिंकिंग नॉलेज क्या है दैट यूज्ड टू मैटर अ लॉट. एंड हम उनके साथ काफी बात करते थे. और एक फैक्टर था लोग क्या कहेंगे. एक फैक्टर था वो हमको निकालना था. तो उस टाइम ऐसा था कि काफी लोग आके हमको इनडायरेक्टली पूछते भी थे सब ठीक है ना. नहीं अब वो सोसाइटी का डॉगमा हम इसको कुछ नहीं कर सकते. बिल्ट लाइक दैट. बट वी फेल्ट कि हमने काफी सारी चीजें सीखी. सुबह 5 बजे उठना वहां पे 5 बजे पहुंचने के लिए हम 3:30-4 बजे उठते थे. फिर पहले 3 दिन तो लोगों ने बोला ये क्या बना रहे हैं क्योंकि एक इडली और रागी की इडली में बहुत फर्क है. वो टेस्ट में इतनी अच्छी नहीं लगती है. तो वहां पे हमने सीखा कि प्रोडक्ट कितना भी आपका इंटेंट अच्छा हो प्रोडक्ट लोगों को पसंद आना चाहिए. तो आप इंकार्टो में जब आप वेबसाइट देखते हो हमारे प्रोडक्ट आप देखोगे तो आपको पसंद आएगा. प्राइस सेकेंडरी चीज आती है. डेफिनेटली लोग पहले प्राइस नहीं देखते पहले प्रोडक्ट देखते ओके वाओ देन प्राइस. सो तब मुझे समझा कि प्रोडक्ट हैज टू बी मार्केट फिट. definitely even whenever I go to purchase
मुझे पहले क्वालिटी, फिर वो महंगा रहेगा या सस्ता रहेगा वो बाद में की बात है, मुझे क्वालिटी ऐसी चाहिए कि लॉन्ग टाइम चले भी और एक ऐसा कुछ हो कि इट लुक्स लाइक गुड, मतलब गुड एस्थेटिक। एस्थेटिक। अभी एस्थेटिक का ही पूरा हो गया है, बिल्कुल जहाँ बिल्कुल। एस्थेटिक चाहिए। अभी मैं फिलहाल बीबीए में हूँ, मेरे फ्रेंड्स एमबीए में है, थोड़े बीकॉम में भी है, तो दे वांट, डिग्री चल रही है पर हमको एक स्टार्टअप भी करना है, तो उसके लिए थोड़ी इनिशियल स्टेजेस में चीजें भी लगेगी कि हाँ स्टार्टअप करना है। तो व्हाट वुड बी योर से ऑन दैट? ठीक है। सो इट्स अबाउट अ सिंपल क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, राइट? एक ये क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करता है। सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट अ बिजनेस, फर्स्ट थिंग आपको आपके रिसोर्सेज को लाइन अप करना है। देखो कितना भी इंसान कोई भी सिचुएशन में उसके पास कोई ना कोई तो रिसोर्सेस है, राइट? तो लिस्ट डाउन द रिसोर्सेज दैट यू हैव। फिर सेकंड आता है कि आप वो रिसोर्सेज से क्या कर सकते हो। लाइक मेरे केस में स्टेशनरी बिजनेस वाज माय रिसोर्स। हम 1970s से ये बिजनेस, I could have gone into water bottle business. I could have gone into a flower pot business. Why stationery? Because that was my resource. आज के डेट में if you tell me कि let's sell this bottle online, I can sell it very easy. But is it my resource? No. So first is the resource. Second resource I had was मेरे पास funds थे. So I did not have to go in the market and raise the funds. But ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास funds हो गए. So you have to be very much precise कि आपको business में कितना funds लगने वाला है. आप अंधाधुंध मार्केट से पैसा उठाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको रिटर्न भी तो देना है। सेकंड, फाइंड अ प्रोडक्ट दैट इज प्रॉफिटेबल, नॉट इमीडिएटली बट सर्टेनली इट हैज टू बी प्रॉफिटेबल। अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है, यू स्टार्ट अ कंपनी विद द विजन कि आई वांट टू स्टार्ट अ कंपनी, will not work. You'll have to have a profitable vision and a profitable product. And last, कि see, can that business be delegated? When I say delegated, क्या मैं उसको ऑटोमेशन लेवल तक लेके जा सकता हूँ? और ऐसा नहीं कि हर बिजनेस को आप ऑटोमेशन पे लेके जा सकता है। लेट्स टॉक अबाउट द फील्ड ऑफ डॉक्टर। एक डॉक्टर है, ही इज वेरी मच प्रिसाइज फॉर हार्ट सर्जरी। वो कितना भी कुछ कर ले, ही कैन नॉट ऑटोमेट इट। ऐसा नहीं कि नॉट, ही इज गोइंग टू अर्न अ लॉट एंड बट ही कैन नॉट ऑटोमेट इट। सो मेरे हिसाब से एज अ बिजनेसमैन यू हैव टू सी इफ ऑटोमेशन कैन बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, तो वो बिजनेस आप स्टार्ट करो। वरना आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तो मिल जाएगा, लेकिन आपका वर्क लाइफ बैलेंस एंड सेकंड बिजनेस करने के लिए वक्त नहीं मिलेगा। सो बीइंग सेड दिस, फाइनेंशियल फ्रीडम कब आती है इन मतलब स्टार्ट करना है तो फाइनेंशियल फ्रीडम स्टार्ट कहाँ से होती है? दिस क्वेश्चन ब्रिंग्स टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फाइनेंशियल फ्रीडम, लोग समझते कि आज मैं महीने का XYZ अमाउंट कमा रहा हूँ तो पैसा मतलब बन रहा है तो मैं फाइनेंशियली मैं फ्री हूँ। ऐसा नहीं, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, कुड बी एंटायरली रॉन्ग बट इट हैज वर्क फॉर मी। आई फील फाइनेंशियल फ्रीडम इज द प्लेस और अ सिचुएशन जहाँ पे आपके हाथ में एक ब्लूप्रिंट है कि मैं ये 10 चीज कर रहा हूँ, ये 10 चीज करने के बाद ये सर्टेन अमाउंट में कमा रहा हूँ, तो नाउ यू आर फाइनेंशियली फ्री। कि आप वो 10 चीज को एक्सेलरेट करो तो आपका इनकम बढ़ेगा। लेकिन जब तक आपके पास वो ब्लूप्रिंट नहीं है, आई वुड से डोंट थिंक ऑफ एक्सपांडिंग योर बिजनेस, लुक फॉर द ब्लूप्रिंट। ओके, सो नाउ इवन मैं भी एक स्टार्टअप में हूँ तो इवन आई डू बिजनेस, तो मुझे कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि लाइक मैं बिजनेस में हूँ बट मैं भी कहीं ना कहीं फिनेंशियली फ्रीडम नहीं हूँ अभी तक, लाइक इट्स जस्ट अ स्टार्टअप। हम दोनों कर रहे हैं या फिर XYZ जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं, मेरे 2-3 फ्रेंड्स है, दे आर लाइक वी आर नॉट फाइनेंशियली फ्री व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस। मे बी एक का पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द फाइनेंस, हमारा तो हम लोग मैनेज करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू माय फ्रेंड्स आल्सो दे बी लाइक फाइनेंस तो हम लोग को पेरेंट्स से मिल जाए, बाहर से दे आर नॉट लाइक अर्ज नहीं होती उन लोग को बाहर से लेने की कि रिस्क है। तो आई बी लाइक ठीक है रिस्क है तो, पर रिस्क लेगा तभी तो आगे जाके कुछ समझेगा तेरे को। तो फाइनेंशियल फ्रीडम, इट इज टू अर्ली टू ऑप्ट फॉर अ फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आपको इतना मतलब, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इंकार्टो काफी अर्ली स्टेज में प्रॉफिटेबल हो गया, जो होना नहीं चाहिए था। जितना जल्दी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा, कहीं ना कहीं आपका एक कंफर्ट जोन ग्रो होने वाला है, राइट? तो कंफर्ट जोन काफी डेडली चीज हो जाती है। आई फील कि वेट फॉर इट, एवरीथिंग कम्स व्हेन द टाइम इज राइट। अगर आप उसको हरी अप करोगे ना तो हो जाएगा, लेकिन वो बेस नहीं होगा, आपका बिल्डिंग बहुत नाजुक हो जाएगा, वो कभी भी गिर जाएगा। एंड मे बी कंटेंट कम की मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं रहूंगी कि मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी है वो चीज इसमें। हाँ, मेक सेंस। आई मीन आपको
एज के पहले अगर पैसा मिल जाएगा या एज के पहले फेम मिल जाएगा, तो कंफर्ट ज़ोन से आप कैसे निकलोगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट जर्नी आउट देयर। इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी फिर वो ऐसा रह जाएगा कि यार इतना हार्ड वर्क करके सब कुछ है मेरे पास, बट वो एक सैटिस्फैक्शन नहीं है जो मुझे चाहिए था इन माय हार्ड वर्क स्टेज। One quality every leader should have. One quality every leader should have: communication. Okay. One word to describe entrepreneurship. Smart work. Best piece of advice ever received. Don't work hard, work smart. An entrepreneurial myth that you think must be busted. It's not fun. Okay. Favorite business tool or app? Favorite business? Tool or app that you use? Canva. Okay. So, are you a morning person or a night owl kind of? I am moody person. It depends on my mood.